Welcome to By the IS channel. I am Dr. Madhu. So एनिमल रिप्रोडक्शन का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद नाउ वी विल डील इन यूनिट 1 ऑफ पेपर 2. यूनिट 1 ऑफ पेपर 2. यूनिट 1 पेपर 2. In this topic we will cover anatomy, your pharma and hygiene. हाइजीन में हाइजीन का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इन दिस टॉपिक यू हैव वेरी ब्रॉड स्कोप बिकॉज आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ वन हेल्थ बाय WHO, anything can be linked to the hygiene and public health. So soil, water, air hygiene. Apart from that, in this portion, we will not deal with what kind of different zoonoses are occurring. Those classification of zooanthropognosis, anthropozoonosis, metazoonosis, direct zoonosis. All those portion will be covered in your epidemiological section. Here we will deal about the zoonosis and impact of zoonosis on human health. Not zoonosis in technical term, but the impact. That's why you will see कि जितना टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर that has a very huge impact on your GS3 syllabus. So simultaneously, few of the GS3 syllabus will be covered from these topics. And you never know, a question may come in GS3 and you will get answer of that question through the discussions we are going to undertake in this section. So extremely important, extremely, entertaining also, because I will be telling you numerous examples that those examples you will be able to use not only in GS3 but also in your essay. Okay, because if you get a standalone essay on environmentalism, role of environment, destruction of environment, or anything like that, even agriculture, connections of agriculture and environment, or connection of environment with industrialization. So these ideas you will be able to use there. Okay, that's your creativity. So extremely important topic and entertaining. But we will start from public health hygiene, the easiest section. Then we will move to pharmacology, and then in last portion we will cover anatomy. Because anatomy is somehow difficult and lengthy also. And you will get maximum 1 or 2 questions from there. But somehow we have to cover. So we will start with public health. So if you see the definition of public health, you will see that this definition is inclusive. That VPH is defined as sum of all contribution to the physical, mental and social well-being of humans through an understanding and application of veterinary science. So here they are talking about 3 things: physical, mental and social. Now, from normal perspective, if you ask any layman, कोई भी एक बात जनते आम आदमी से पूछो, so at max वो zoonosis को कनेक्ट करके आपकी फिजिकल हेल्थ से जोड़ देगा कि अगर जानवर बीमार है तो देयर आर चांसेस कि वो जो बीमारी है वो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है. जूनोसिस उनको इतना पता है, जूनोसिस मींस एनिमल्स की बीमारियां इंसान में जाती. और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी जो डेवलप हुई है वो भी कहां से हुई है? कोविड-19 से. कि समहाउ ये जूनोटिक डिसऑर्डर था क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक हुआ, दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस ऑफ lay people increased. So they will limit their understanding to the physical aspect only. But when we are going to answer your questions for an examination like civil service examination, examiner expect that we will explore multiple dimensions, not just one, because the whole idea is to open up your mind, to broaden up your mental horizon, how broadly and how far you are able to see. So after physical, if you talk about mental,
Only few people will be able to, answer this question. So according to unwoman.org, the cases of depression and anxiety increased by 25% during the first year of pandemic COVID. Because we all, the normal way of life was cut down. We all were isolated, not able to contact with our loved ones. If children are working, say, in Bombay, and people, parents are living in some rural area or in Delhi or any other state, they worry about each other. कि उनका क्या होगा, वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी. In case they encounter any disease, will they be able to get hospital beds, ICU facilities, ventilator? All these things created numerous anxiety in normal people. Apart from that, tension about unemployment. So people who are involved in regular employment, they still, absorb the shock. But what about people whose employment depend upon daily wages? Construction activities come, tourism shut down. So whatever I'm going to tell you here, if some unique point come, so jot down those things in your notes. कॉपी पेन लेके बैठो और उनको jot down करो, because these ideas will help you in numerous ways. ठीक है, ये you never know कब किस जगह कैसा क्वेश्चन है और कहाँ पे आइडियाज फिट हो जाए. So worry about employment, loved ones, normal way of life shut down. You're not able to meet other people. Sports activities closed. No international events are happening. Anxiety about life and death. So 25% increase in cases of anxiety and depression as per unwoman.org. So whenever you write such kind of things, it's better to give the reference if you remember. Otherwise, no need. You just write कि due to COVID pandemic, cases of anxiety and depression increased by 25% as per various reports. That's how you write the answer. So, mental issues and then social well-being. Social well-being. Now, what do you consider social well-being? क्या dimensions हो सकते हैं social well-being? Social well-being. Now, I don't know whether you heard this term or not. Very common term. Shadow pandemic. Shadow pandemic. Could be a pandemic. जैसे परछाई होती है ना, shadow pandemic. The idea here is that one in every 3 women encountered some sort of violence, sexual abuse from their own intimate partner. And since the violence is caused by the intimate partner, they were not able to express these violence freely because the individual is living along with her. अगर वो ऐसे openly बोलेगी तो that will destroy the relationship. Although relationship is already destroyed when you are using violence against your spouse or your partner, that itself depicts that some kind of that barrier, the barrier of respect, the barrier of love has been broken. But still, women being more emotional as compared to men, they are more sensitive. They were not able to freely talk about that. They kept suffering and suffering and suffering. And why such kind of activities are happening? Why? Because male itself, when they were locked down, they were isolated, is some kind of frustration developed in them. Both of the sex, but somehow being a man, the male ego also played a role. So the concept of patriarchy also applies here. The male ego.
They were not able to express themselves. Firstly, the women don't know about the administration, the provisions, the laws, and even if any one of them know about these things, the system tries to suppress it. The system is more interesting in that you should go for any kind of compromise. They don't want to, system don't want to, record all these things. And when you are beaten up, when you are abused, when you are under huge pressure, you are in tension, you are under stress, how can you be able to express yourself in society? The connections are destroyed. So it's also about social well-being. So whenever there is a involvement of any kind of zoonosis of a scale of COVID, so all these three things are important. So you can use all these ideas at multiple places. How social well-being is also impacted by the pandemic. That's why the idea of One Health got traction, because the impact and scale of COVID was huge. Okay, so the triad, the important thing. So according to One Health initiative, there is a strong link between human health, animal health, and environmental health. That means you cannot separate one segment from the other without damaging the complex balance between all these things. Actually, what happens in ecology is that everything is connected to everything else. And you just cannot pull out one cog from that web and expect that nothing will happen to the other system, the balance of the system. The whole system will get affected. So that's the idea that whenever we are taking advantage of any natural, resources, there must be some repercussions. So whenever there is a pollution impact on human health, whenever there is a disease in animals, since animal-human contact is huge, why humans are keeping animals? For the perspective of economy. अगर ये जानवर अगर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में नहीं देंगे, why we keep these animals at first place? We want milk production from cow, we want egg production from hens, we want wool production from sheep. So that means humans are deriving benefits from animals. That's why we are keeping them. Once an animal goes dry, उसकी प्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है, उसके बाद रखने का उसका कोई सेंस नहीं है, और नॉर्मली फार्मर डोंट कीप दैट. सो व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, सो वो जो डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द ट्रायड दैट यू कैन नॉट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर. द मेन आइडिया ऑफ वन हेल्थ. Now zoonosis and causes. Why the cases of zoonosis increasing day by day? Okay, so human-animal health link. During use of animals, we derive numerous, benefits from animals like transportation, broad purpose, fuel, clothing, protein. That means at every point of time we are deriving some kind of benefits from animals. और चूंकि ये इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में लाइफ स्टॉक रियरिंग आती है, और इसके अंदर अब जीडीपी इन्वॉल्व हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है. यू कैन नॉट जस्ट शट डाउन इट. आप बंद तो नहीं कर सकते ना कि इसकी प्रॉब्लम हो रही है उसको बंद कर दो. दैट्स नॉट पॉसिबल, और वो कोई सोल्यूशन भी नहीं है. सो ज़ूनोसिस का कॉज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एनिमल हेल्थ लिंक.
सेकंड क्या होता है, इससे इस लिंक से क्या होगा, पब्लिक हेल्थ रिस्क ड्यू टू क्लोज कनेक्शंस. Close connections. If you go to any village, you will see 2-3 animals in every house. Every house. So when एक को भी disease है, there are high chances कि वो disease दूसरे पे spread हो जाएगी. A couple of years back, LSD came, lumpy skin disease. In no time, the disease spread from Gujarat to Rajasthan to Haryana in no time. So can you imagine कि भाई वो सिर्फ एनिमल की मूवमेंट से हुआ था? No, there is a lot of environment also, vector population also. You cannot separate the triad. ठीक है? So due to close connections, zoonotic disease, about 75% of new diseases. This is very important. About 75% of new disease in the past decade have originated from animals or animal products. From animals or animal products. भाई एक क्वेश्चन है, सोच के देखो. Humans और animals तो since ages 5000 साल से from हड़प्पन civilization, human और animal तो साथ ही रह रहे हैं. ये recent past में ऐसा क्या हो रहा है? क्यों रिसेंट पास्ट में ऐसा क्यों हुआ कि 75% ऑफ न्यू डिजीज 75% ऑफ न्यू डिजीज इन द पास्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल्स? क्या हो रहा है ऐसा लास्ट में? एनिमल के साथ तो हमेशा से लाइफ स्टोरी रही, तो आज पूरी हमेशा से रही है. प्रॉब्लम हियर इज दैट ड्यू टू मोर industrialization, commercialization, and you say infrastructure development. Actually, we humans, for the sake of our own benefit, we are charting into the territories of animals, especially wild animals. हम deforestation कर रहे हैं to clear forest for agriculture. We are clearing forest for development of road, highways, infrastructure. Actually, we are entering into their domain. They are not coming back to us. वो तो ठीक है जब आपने किसी का domain, वो एविल क्वार्टेट होता है, habitat destruction. द मोमेंट आपने एक एरिया का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो वहां के जो एनिमल है, वहां का जो नीश एनिमल है, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा खाना खाने के लिए. तब आप देखो लेपर्ड और ये तेंदुए और ये सारे जो होते हैं गांव में आ जाते हैं. बट दे डोंट वांट टू मेस विद ह्यूमंस. नॉर्मली डोंट वांट टू मेस विद ह्यूमंस. सो इन रीसेंट पास्ट, ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोसेस, तो डेवलपमेंट भी जरूरी है. अगर हम वाइल्ड में अगर फॉरेस्ट को काट के कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर ग्रोथ कैसे होगी? हाउ वी विल मूव इनटू द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड? सो वेरी डेलिकेट बैलेंस. सो दैट्स व्हाई you will be asked a very common question: development versus ecology. Development versus ecology. They will ask such kind of questions in GS paper 4, environmentalism. So in those type of questions, you have to write the both aspect and then somehow able to strike the balance. ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब कुछ बंद कर दो, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा रहने दो. अगर ऐसा रहेंगे फिर डेवलपमेंट कैसे? So people who are living in remote areas, Jharkhand, Western UP, Odisha, those remote areas, they also want their share in the development fruits. But somehow, as Gandhiji said that this mother heart has sufficient for everyone's need, but not for anyone's greed. So here the concept applies on need versus greed.
हमें नीड को देखना है, नॉट ग्रीड। बट होगा क्या, द मोमेंट एनी एक्टिविटी विच इज गोइंग टू बी कमर्शियलाइज, जैसे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी, द ड्राइविंग फोर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर इज ओनली प्रॉफिट। They don't care about all these kind of things, one trade, one health and all this nonsense. For them अगर पैसा मिल रहा है तो 100 एकड़ काट दो, कोई बात नहीं। They don't think twice. At max what they will do, कैंपा फंड्स होते हैं, कैंपा फंड्स, कि एक जगह पे इन्होंने प्लांट लगाना है, सपोज कोई डीप फॉरेस्ट झारखंड में, नियामगिरी में, नीलगिरी में, कहीं पे भी, तो उन्होंने 100 हेक्टेयर का फॉरेस्ट बर्बाद कर दिया। सो दे गो फॉर रिफॉरेस्टेशन समवेयर एल्स, रिफॉरेस्टेशन समवेयर एल्स। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, 100 एकड़ का 100 हेक्टेयर कर दिया तो 200 हेक्टेयर में लगा दिए। एंड दे बोस्ट देमसेल्फ, देखो हमने तो रिफॉरेस्टेशन किया है, दैट वी डिड रिफॉरेस्टेशन, देखो हमने बर्बाद तो 100 की, तो डबल दे दिया और पैसा दे दिया कैंप ऑफ फंड्स में। बट देयर आर प्रॉब्लम्स, problem is related to that complex food web, the complex food web which is developed over a period of hundreds of years। वहां पे स्पाइडर्स थे, वहां पे फंगस था, वहां बैक्टीरिया थे, अर्थवॉर्म थे, सॉइल माइक्रोब्स थे, इंसेक्ट्स थे, मॉथ थे, बटरफ्लाई थी, हनी भी थी, उसके बाद उनके प्रेडेटर्स थे, ग्रासहोपर थे, स्नेक्स थे, स्पैरो थी। सो ओवर द पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स उन्होंने कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाया था उस 100 हेक्टेयर पे। अब आपने वो काट दिया, आप पेड़ तो लगा दोगे, हाउ विल बी यू एबल टू शिफ्ट दैट कॉम्प्लेक्स वेब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? उसको तो दोबारा डेवलप होने में उतने 1000 साल या 100 साल लगने ना। You cannot shift. You cannot shift that web. That web is destroyed. Destroyed permanently. So whenever any kind of commercialization is going to take place, private sector don't bother about anything. That's why government started CSR. कि थोड़ी अकल आए इनको भी, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, थोड़ी अकल आए। और अकल आने की बजाय वो इसको भी बर्डन समझते हैं। So actually the issue is that we are charting into the territory of animals. They are not coming to us. वो आ रहे तो मजबूरी में आ रहे हैं। That's why you see कि इतनी इमर्जिंग डिजीज हो रही है 75%। Need versus greed. If you want to do something, do it first a limited scale, do pilot project। थोड़ी जगह पायलट प्रोजेक्ट करो, जो लोकल ट्राइबल्स है, जो पीपल है, टेक रिकमेंडेशंस फ्रॉम देम। अब एक ये जंगल था, आपने यहां से बीच में इसके हाईवे निकाल दिया, इफेक्टिवली ये दो पार्ट बन गए। अब इसके ये कनेक्शन नहीं रहा इनके अंदर, फ्रेगमेंटेशन हो गई। न्यूमरस केसेस ऑफ वाइल्ड डेथ, एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स। So that's why you will see 75% of new diseases. That's the whole idea. You got my point? अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्लोबल स्प्रेड।
2020 में कोविड आया, 1920 में कुछ स्पेनिश फ्लू आया था, 1920 में आया था, 1820 में आया था, इसमें से कोई आया था। पहले बबोनिक प्लेग आया था। The idea is that humans have faced numerous pandemics in the past also. Numerous pandemics. And even more dangerous, more deadly. Plague and Spanish flu were more deadly than COVID-19. बट उनका इम्पैक्ट ग्लोबली इतना ज्यादा नहीं हुआ। अब इतना ज्यादा क्यों हुआ? वाई टुडे? पहले कभी वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, सोचा ही नहीं किसी ने, अब क्यों? बताओ कुछ, क्या हो सकता है रीजन? कुछ दिमाग में क्या रीजन क्या हो सकता है? There must be some reason। पहले भी तो आने हैं, हमेशा से आते हैं, हमेशा से। हर 100-150 साल में ग्लोबल पेंडेमिक फेस किया है सिविलाइजेशन। अब की बार का लीथल क्यों था? डेंजरस होते लीथल ये था, क्यों? सिंपल है। द रीजन बिहाइंड ग्लोबल स्प्रेड इज कनेक्टिविटी। मिलियंस ऑफ फ्लाइट एवरी डे, जो 1920 में नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, ट्रेड, tourism, and then flights। इन नो टाइम, आज के टाइम पे अगर सपोज टोक्यो में कुछ हो रहा है ना, कुछ बीमारी फैली, कितना टाइम लगेगा उसका? विद इन 10 आवर्स न्यू दिल्ली, लेस देन 10 आवर्स। ये केस पहले नहीं था। We are talking about these days concept of global village। Write down all these keywords। Keywords इन्हीं के नंबर मिलते पेपर में। Global village, that the world is so intricately attached, connected, that anything happening anywhere has impact on the other places in no time। Global village because of connectivity। Science and technology, research and development, new equipments, new means of communications has rendered the rigidities of space and time irrelevant। In less than 1 hour, complete circumference of Earth। That's why global spread। अब क्या है कि इकोनॉमीज इतनी इंट्रिकेटली अटैच हो गई है, इवन सप्लाई चेन्स। अब जब कोविड आया था, उस टाइम पे एक आइडिया है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो, ट्रेड वॉर्स, चाइना+1 पॉलिसी, चाइना+1 पॉलिसी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना, look for alternative destinations where you can go for your industries, manufacturing industries। बट वो हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। चाइना को पता था कुछ मर्जी कर लो, नहीं हो सकता। वाई? वाई चाइना न्यू दैट कुछ नहीं कर पाओगे। Because such kind of supply chains has been developed over decades। आज अगर मुंबई में कोई फर्म है, उसको स्पेयर पार्ट्स चाइना से आ रहे ना, वो कहां से क्या है, वो एक पूरी चेन होती है। यहां से वहां जाएगी, उसको टेंडर दिया, वहां से मिलेगा, इतने हमें पैरामीटर्स का ये प्रोडक्ट इतने स्केल पे चाहिए। वो सप्लाई चेन जो बनी ना, वो सप्लाई चेन की मैच्योरिटी होने में 10-10 साल लग जाते हैं।
अब सडनली कह दो एक महीने में कि छोड़ो चाइना नहीं कुछ और जगह जाओ, कैसे? कैसे? चिप चिप पेंडेमिक भी हो गया था। चिप, आपको शायद पता होगी, उस टाइम पे गाड़ियां नहीं मिल रही थी, बन ही नहीं रही थी, शॉर्टेज ऑफ चिप्स। ताइवान इज लीडिंग इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिपेंडेंसी है वहां पे। यू कैन नॉट शिफ्ट ओवरनाइट, दैट्स व्हाई ग्लोबल स्प्रेड, डिपेंडेंसी, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते आप चेंज ओवरनाइट। इकोनॉमी इन्वॉल्व है, all these things, ecology, economy, health, environment, all those things are so, इतना डीप कनेक्शन है ना। आप चेंज कर एक प्लग को निकालिए आप और पूरा का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, इतना फ्रेजाइल है। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया को पता था डिपेंडेंसी है पूरी यूरोप की उसकी गैस की, इमीडिएटली कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो इंडिया हमेशा डाइवर्स कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करवाता है, क्रूड ऑयल, कि किसी एक पे डिपेंडेंसी ना रहे, चाहे रेट अलग अलग हो, कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सो दैट यू आर एबल टू टेक डिसीजंस ऑन द मेरिट ऑफ द केस, ऑन द मेरिट ऑफ द केस। ठीक है, दैट्स व्हाई द वर्ल्ड इज सो इंट्रिकेटली connected like global village. Preventable zoonosis, no, rabies, brucella, leishmaniasis, disproportionately, very important, affect the poorest populations. There are many diseases which are preventable, which are preventable. But we are not able to prevent them. International administration is not able to prevent them. Why? Because those diseases affect the disproportionately to the poorest populations. So there is a concept of NTD, neglected tropical diseases. Neglected tropical diseases like leishmania, malaria. Now there are tropical countries, ये अर्थ है, इसके बीच में जो रीजन है ट्रॉपिकल कंट्रीज, these are poor countries. तंजानिया, युगांडा, नाइजीरिया, टोगो, घाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, जाम्बिया, poor. Again the concept is of profit. Why would Moderna or Pfizer or any of the other MNC, big, not MNC, TNC, transnational companies, why would they invest billions of dollars in R&D for developing a vaccine or medicine that cater needs of the poor people? Because they know recovery होगी, रिकवरी होगी नहीं। हमने $1 बिलियन लगा दिए R&D में, कंट्रोल और लिस्मानिया, 100 साल में भी रिकवरी नहीं होनी। They are poor people, they don't have the potential to buy. सरकार भी गरीब है। Leave aside profit,
जितना पैसा लगा वो नहीं आएगा। दैट्स व्हाई नेग्लेक्टेड these diseases are neglected by the companies, by the NGOs, by the international administration। और ये वो डिजीज हैं जिनके ऊपर अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो प्रिवेंट हो सकती है। बट इन पे काम नहीं होगा। काम किन पे होगा? नई नई ड्रग्स किन की आएंगी? बीपी की, डायबिटीज की, ओबेसिटी की। इन पे बहुत रिसर्च हो रहा है। इन पे रिसर्च होएगा। इन पे रिसर्च होएगा। वाई? नो सी द लिंकेजेस। अब वही कंपनी है, स्टॉक होल्डर है सपोज ए, उसने पहले इन्वेस्टमेंट किया बी। बी इज डेवलपिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। सो आप पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बेचो मार्केट, कोको कोला, चिप्स, कुरकुरे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। These will develop issue like BP and diabetes. Then you fund a pharma company which will develop medicine of this. So दर्द भी हम देंगे और दवा भी हम देंगे। दर्द भी हम देंगे और दवा भी हम देंगे। सर इस पे रोक क्यों नहीं लगाती गवर्नमेंट सर, फिर जब पता है सब कुछ? या हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं या सर ये पता रहता है पहले से कि इसे करना ही? सर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो कोई ऐसी बात तो नहीं जो मेरे को ऊपर से ब्रह्म ज्ञान हुआ है। डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट न्यूज़पेपर, सब पता है। एवरीबॉडी नोज दिस। क्या जो आपके एरिया में सैंड माफिया हो रहा है, टिम्बर माफिया हो रहा है, क्या सरकारों को पता नहीं होता? वो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के इतने कांड कर रहे हैं, क्या पता नहीं है? फोन कहां से आया उसको? कनेक्शन कैसे हो रहा है? दिस इज द इशू सर, दिस इज द रियल इशू। So nexus, that's so strong nexus between lobbies। lobbies, कौन सी lobbies हैं इसमें? फैक्टर्स कौन से हैं इस लॉबी में? पहले पॉलिटिशियन। I don't know whether I need to say this thing or not क्योंकि ये on record है, but somehow reality must be spoken। lobbies between politician, corporate, gangster, huge profit, huge, mind-blowing profit। सर एक नया फ्रेज है that we all are corrupt provided we get opportunity। यस सर, नहीं तो ईमानदारी तो सभी में है। ईमानदारी सब में है। यस सर, जब तक मौका नहीं मिले तब तक सब ईमानदार है। जब तक वो निर्दलीय एमएलए होता है, निर्दलीय एमएलए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है, मेरा वो है। जैसे ही 50-50 करोड़ इमीडिएटली धिमान अरम जो ना जो फैक्ट कैसा ईमान कैसा धर्म। यस सर, ये तो फील्ड में है ही सब ऐसा। Actually, when you are preparing for civil service examination, that's the whole idea, that your mind should, open हो जाना चाहिए to see the things which is happening in your environment, see the thing। I always say to, मैंने शायद प्रीवियस बैच में बताया था आपको, क्योंकि कई सारे बैच चल रहे हैं ना, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता, बट ये जो बैच है ना सिविल सर्विस वाला, ये लेने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। बिकॉज यहाँ पे जो बातें बता रहे हैं वो आपको एक्चुअली में जीएस में भी, ऐसे में भी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। जो दूसरे बैच जहाँ पे सिर्फ वेटरनरी ऑफिसर का एग्जाम है, वहां पे स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उनको इस बातों से मतलब नहीं, उनको सिर्फ इतना चाहिए कि भाई ब्रुसेला क्या है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, उनको बड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। बट इस एग्जाम, इस ना लेक्चर में मजा आता है। अब क्या होता है ना सर कि
तो ग्लोब ही इतनी स्ट्रांग होती है, यू नो एवरीथिंग, और आपका दिमाग खुलेगा। जैसे देर आर हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब, बिस्मार्क, मुझे नहीं पता कि आपने अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी, वंडरमैन, पूरा यूरोप अगेंस्ट था और समहाउ इस आदमी ने जर्मनी क्रिएट कर दिया। एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन, लीडर। हिटलर, नेपोलियन, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गैरिबाल्डी, होप्स, थॉमस होप्स जो थिंकर है, इंटेलेक्चुअल, एंड इन सब के ऊपर बैठा गांधी। देयर आर न्यूमरस हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट लीडर्स जिनकी इतनी रिच मतलब हिस्ट्री रही है कि आप वो पढ़ोगे तो रोम रोम खिल उठता है कि क्या लेवल का आदमी था, क्या सोच थी इसमें, कि क्या करके गए। अब जितने भी लीडर्स थे, जितना मैं इनको समझा सबको, मैंने इतना समझा कि इनके अंदर नो डाउट कि क्वालिटीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट थी, और दो क्वालिटी थी सब में सेम थी, सब में सेम थी। पहली, स्टेबल माइंड, स्टेबल माइंड। दुनिया उंगली लगाई जा रही है, एक्साइटिंग नहीं हो रही, कुछ मर्जी कर लो। गौतम बुद्धा तो जा रहा था, अब उसने चैलेंज किया ब्राह्मणिज्म को, वो अकेट हुए, स्टार्टेड गिविंग अब्यूजिंग इट, लिटरली गाली मां बहनी गाली। अब उस बंदे का एक नॉर्मल आदमी एटीट्यूड कैसे कर दिए, इतनी गाली कैसे, सारे दे रहे बाढ़ कर। उसका रिप्लाई कैसे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोला कि अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे और वो लेने से मना कर दे तो उस गिफ्ट का क्या होगा। लोग बोले वो तो देने वाले के पास ही रह जाएगा। बोला एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी गाली नहीं लेता। स्टेबिलिटी माइंड। आज आपके पोस्ट पे कोई एक नेगेटिव कमेंट लिख देना, वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे कैसे लिख दिया, आप 4 लाइनें, फिर वो 4, फिर वो 4, चलो आपका छोड़ो, आप चलो डायरेक्ट हो गया। आज के टाइम पे कोई किसी पॉलिसी देख लिया, कोई मुद्दा हो जाए देश में, वो आ जाएगा न्यूज। अब उसका कमेंट सेक्शन खोल के देखो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लड़ रहे हैं लोग, जानते नहीं दूसरे को, लड़ रहे हैं। वाह, तेरे को ये देख लो, कीबोर्ड वॉरियर्स, कीबोर्ड 50 किलो वजन नहीं होगी, थप्पड़ लगते तो शक्तिमान पर घूमते हैं, पर बहुत बड़ी 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 तो लगाएंगे। अबे तू भीख मंगे, कैसे ये समझ नहीं आ रहा है तो क्या कुछ करना है समाज के लिए, पढ़ो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने लिए मकान बनाओ, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट लो, दैट्स हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। इस अराजकता फैलाने से इकोनॉमी कुछ नहीं कर रहे आप, एक्चुअली देश का नुकसान कर रहे हो इससे। बट सर पॉलिटिशियन प्रमोट इतना, सर पॉलिटिशियन प्रमोट कर रहे हैं ना कि आधे से ज्यादा जनता इसी में फंसी रहे, तो मुद्दे की बात ही ना हो मीडिया में, न्यूज में। पर सर एक बात बताओ ना, हम कब तक पॉलिटिशियनों को धोखा देंगे, कब तक उनको ऊपर ठीक रख फोड़ेंगे। गलती तो हमारी। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ एंड समहाउ डॉक्टर केपी इज एबल टू इंस्टिगेट मी, गलती तो मेरी है ना सर, माइंड तो मेरा है ना, मेरा माइंड कंट्रोल में मेरे रहना चाहिए, मैं इसका कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल आपको दे दूं। यस सर, गलती तो इंडिविजुअल की है। हाँ जी, गलती इंडिविजुअल्स की है, तभी तो सर उसी का तो फायदा उठाते हैं सब ये लोग। यही तो बात है ना, आप फायदा। Yes, अब लीडर्स को पता है बात कि ये अगर मेरी गुलामी नहीं करेंगे तो मेरी बजाय कोई और आ जाएगा, उसी करेंगे। इन्होंने तो गुलामी करनी है, तो क्यों ना मैं ही मजा ले लूं। कोई एक बाबा जेल में गया, उसकी जगह प्लेस लेने के लिए दूसरा आ गया, उनको पता है ये बात। एक्चुअली वी डोंट हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी हुई है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वेयर इज साइंटिफिक टेम्पर, मतलब क्या, जब इसको डाला नेहरू ने, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो भाई, नहीं तो देश का भला नहीं होगा। You must analyze the things. You must analyze the facts of the case. उसके बाद devise any mechanism.
गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते, गांधी जी चाहते थे। बोले तेरे को किसने बताया? मतलब व्हाट्सएप पे पढ़े हैं भैया। जी मतलब दौड़ा दौड़ा के मारो, और आप कितना मुझे कन्विंस कर दो। एक्चुअली मैंने बहुत एनालाइज किया, तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आया है कि देखो वी ऑल आर करप्ट। करप्ट का मतलब माइंड हमारा करप्ट, जैसे सीडी करप्ट होती है वैसे करप्ट हो चुका है। सम ऑफ यू ऑल हैव सम काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप डेवलप। जब तक आप छठी क्लास से बच्चों को एथिकल एजुकेशन नहीं दोगे ना, वो पहले समाज शास्त्र में हुआ करता, जो कहानी आती थी, कहानी के नीचे लिखा होता था मोरल ऑफ द स्टोरी। जब तक वो मोरल्स डेवलप नहीं हुए ना बच्चों में, तब तो कुछ नहीं हुआ। आज ये टाइम पे किया क्या है, ये मार्केट फोर्सेस ने और इवन पेरेंट्स ने भी गलती करी कि हमने एजुकेशन को ना सिर्फ और सिर्फ रोजगार का माध्यम बना दिया। तो भाई तू पढ़ ले, 11वीं में पढ़ ले, नहीं तो बगैर मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं दी तो आगे कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। हमारा कॉन्सेप्ट ही आ गया बस, आप नौकरी ले लो, नौकरी के बाद आप शादी कर लो, बस खत्म। अब जब भगत सिंह को उसकी माँ ने बोला, 23 साल का हो चुका था उस टाइम पे, 23 साल की उम्र आधे टाइम पे 35-36 के बराबर होगी, क्यों तो शादी भी निकलता। बोला अब तो हमने आजादी को पता नहीं क्या कहा था कि मौत को अपने दुल्हन बना लिया है। सी द लेवल ऑफ थिंकिंग। अब समस्या क्या हुई, भगत सिंह को भी हमने सिर्फ रेवोल्यूशनरी बना के छोड़ दिया इस देश में। अरे रेवोल्यूशनरी से ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल था, उसकी चिट्ठियां पढ़ो, वो कहता है आई एम एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, that every old notion, it is the responsibility of every person that every old notion must be questioned। यहां ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब इन बातों को निकाले दिएगा, बस भगत सिंह को क्रांतिकारी डेवलप कर, बस वो क्रांतिकारी का एक सिंबल बना दिया। अन्याय है उसके बाद, वो ऊपर बैठ के देखो लग रहा जूता ले आए, फेंक के मारो। इंटेलेक्चुअल था वो, यस, उसको रेवोल्यूशनरी बना के छोड़ दिया बस। और दिस नेक्ससेस जो हम कह रहे हैं, ये मैंने कोई कहीं से मैं कोई नॉलेज, फोटोसिंथेसिस तो ही नहीं कि धूप में जाए खड़ा हो गया आ गया। यही फ्रंट लाइन होती है, ईपीडब्ल्यू मैगजीन्स है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और दिस टाइप ऑफ थिंग, ये पढ़ के फिर। हाँ एक बात और देखो, आप पढ़ने जाओ तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, दैट ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स। क्या होता है कि व्हेन यू आर रीडिंग ए बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, you are just like a passive recipient of whatever author is saying। passive recipient, author बोले जा रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, दिमाग नहीं खुलता उसके, और दिमाग खुलने का टाइम भी नहीं होता। अब आपको लगेगा 2025 में पेपर देना है, अभी जनवरी के बाद एक सडनली प्रीलिम्स का टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं है। और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या चाहिए? टाइम। अब एक मजदूर आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी का नहीं पता, आप उसे एक्सपेक्ट करोगे वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा? उसको शाम के पावे बड़ी है बेटा, रेस्ट मिले। अब आपके पास भी है क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम नहीं, पर somehow when you go for you know second, third, fourth, fifth रिवीजन, तब जाकर दिमाग खुलना शुरू होता है। फिर आप क्या करते हो, जो ऑथर ने बात बोली उसकी की बात के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देते, यार ऐसे कैसे, कहीं और तो ऐसे नहीं पढ़ा था। और या फिर आपका लॉजिकल माइंड शुरू हुआ कि यार ऐसे तो नहीं, यार इसका तो अल्टरनेटिव ये भी हो सकता था। देन यू ट्राई टू फाइंड द आंसर दैट क्वेश्चन। अब जब मैंने मोटर इंडिया की बिपिन चंद्रा पढ़ी, तो उसके तो कम से कम 15 रिवीजन के बाद मुझे लगा यार कुछ आंसर्स ऐसे जो भी मिले नहीं, कुछ क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड। फिर मैं क्या किया, वो सतीश बंदोपाध्याय की है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, वो भी ले आया कि सब वहां पे आंसर मिल जाए। फिर गूगल पे सर्च किए, फिर कुछ चिट्ठियां थी पुरानी, वो आर्टिकल थे वो सर्च किए, तब जाके मुद्दे क्लियर हुए। क्योंकि ऑथर भी सारी चीज लिख नहीं सकता ना एक किताब में। सो मिनिमम 5 रिविजन्स ऑफ एवरी बुक इज मैंडेटरी, तब जाके वो दिमाग खुलना शुरू होगा। सो नेक्सस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबको सब कुछ पता है क्या हो रहा है, सबको पता है। जो समझ जाता है वो बच जाता है, वो खराब खाना खाने से बच जाएगा,
वो कंट्रोल करना सीख लेगा, वो लेबल पढ़ना सीख लेगा। 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था लेबल के पीछे, यूपीएससी ने वो फूड का लेबल पूछ रहे, लेबल पे क्या क्या इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं बताओ। इतना बेसिक क्वेश्चन जो सब हर आदमी खा रहा है, कोई ना कोई पैकेज फूड ले जाए, मतलब उठाई पीछे देखने की भी क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसफैट, मोफा पोफा, फ्लोराइड, सोडियम, इंग्रेडिएंट में कौन सा इसमें प्रिजर्वेटिव है, देख ले जाए, मत उठाई किसी। इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था। एक्चुअली में सिर्फ यही एक ऐसा एग्जाम है पूरे देश में जो इंसान का दिमाग खोलता है, जो इंसान को सच में एग्जाम बनाता है। बाकी सारे तो ग्रुप डी के एग्जाम है। कुछ न्यूज में फैक्ट पूछेंगे, फैक्ट फैक्ट क्या पूछेंगे, अकबर ने इबादत खाना कब बनाया, डेट पूछेंगे, इबादत खाना बनाया तो कब बनाया। यूपीएससी पूछेगी इबादत खाना की थीम क्या थी, व्हाई इट इज मेड। तब आप सर्च करोगे कि वाई है तो क्यों पूछा था, फिर उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फिर आपको समझ में आया कि भी अकबर का जो कॉन्सेप्ट था, तो ही देलाई जो डेवलप हुआ, जो कॉमन ब्रदरहुड की बात कर रहा था, जो उसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस था, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होना था। उसका टॉलरेंस क्यों था, क्योंकि उससे पहले वाली जो 50 साल थे वहां पे एक क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बना रखा था। दादू, नाना, कबीर, इन्होंने क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बना रखा, उसके अंदर वो डेवलप हुआ। तो उस इन्वायरमेंट में अकबर का जन्म होता, तो कहीं ना कहीं उस एटमोस्फेयर का इंपैक्ट था उसके ऊपर। तो यह जब आप फिर यू लिंक करोगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अच्छा अच्छा, ये था पूरा मुद्दा। दूसरे एग्जाम में पूछे कब बनाया था, बस इसे कंपोनेंट क्या थे, हद मार के। यूपीएससी पूछती है व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, और कोई भी इंसान ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, प्रोवाइडेड उस लेवल के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दो। जब क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, तो ये नहीं पूछेंगे शेड्यूल 10 डाला तो क्यों डाला, शेड्यूल 9 की क्या रिक्वायरमेंट थी, रीजन क्या था 9 इंट्रोड्यूस करने का। और कोई मान होगा तो बोलेगा शेड्यूल 11 में आइटम बताओ कितने, आइटम के नाम पूछ लेगा। उससे क्या क्या डेवलपमेंट होगी ब्रेन की, क्या डेवलप, आप उसको रोबोट बना के छोड़ दो इंडिविजुअल को, क्या डेवलपमेंट होगी, रट्टे मरवा के। सो बहुत बातें हैं अपने टॉपिक में, हम जहां भी कनेक्ट हो सकेगा, जो भी आइडियाज होंगे, तो आई विल ट्राई टू गिव यू नो क्रिटिकल इंसाइट दैट यू कैन यूज इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो इजीली। हाँ, वो यूज करना आपको आना चाहिए। आपके पास रिसोर्स है और आपको ये नहीं पता कि मेरे को उस रिसोर्स को कब और कैसे यूज करना है, तो भी आपकी गलती है। देखो ये आइडियाज को कैसे घुसाना है किसी आंसर में, ऐसे के अंदर, ये क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए। और ये कैसे है कि जब आप आंसर राइटिंग करो, ठीक है। सो प्रिवेंटेबल जूनोसिस है, बट दे आर नेग्लेक्टेड ड्यू टू दैट नेक्सस। पैसा नहीं है तो कोई आपकी खबर नहीं। देखो सारा खेल इंटरेस्ट का होता है। अगर आप किसी का इंटरेस्ट फुलफिल करें तो आपकी डिमांड होगी। क्यों डीसी, डीएम, डीएमएसपी कोई क्यों बनना चाहता है, क्योंकि आप किसी के काम कर सकते हो। तो जब कोई आपके पास काम लेके आएगा तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड है। जब आप किसी के काम के लायक ही नहीं हो, कोई आपके पास क्यों आएगा यार, सिंपल है, ठीक है। सो लास्ट है इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंपैक्ट। ऑब्वियसली जहां पे डिजीज है, अब हमें एफएमडी कंट्री डिक्लेयर कर रखा है किसने, न्यूजीलैंड ने। उनकी डेयरी इंडस्ट्री इज मच डेवलप्ड देन अस। अब हमें एफएमडी कंट्री मानते हैं तो हमारा ट्रेड इंपैक्ट होगा। देयर आर प्रोविजंस लाइक एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है एसपीएस के अंदर W2 ने। तो होगा क्या, जैसे ही उनको लगेगा कि भी ये प्रोडक्ट हमारे लोगों के लिए खतरनाक है, या फिर इट हैज द पोटेंशियल टू स्प्रेड इन द फार्मिंग, लाइवस्टॉक फार्मिंग ऑफ आवर कंट्री, दे विल शट इट डाउन।
For exports are very important word. Forex for doubling farmers income. सिर्फ इंटरनल मार्केट से काम चलेगा नहीं, आपको बाहर भी एक्सप्लोर करनी है मार्केट. सो इट विल इफेक्ट द इकोनॉमिक एंड ट्रेड इम्पैक्ट. Now what is this? क्या है ये? What is this? कोई आइडिया? इसमें सर तो दिखाएगा कि एक ही तलवार से सभी का वो सभी को किल कर दिया गया. चाइना का सर लग रहा है ये. वो तो चाइनीज लिखी हुई है ऊपर. यस सर. इतनी तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. ऑब्जर्वेशन से याद है, मैं आपको दो चीज बताता हूँ, रहेगी नहीं कि लीडर्स में होता है एक तो स्टेबल माइंड और सेकंड है, सेकंड फिर कभी बताऊंगा उसके एग्जाम्पल. ठीक है, अब ये है चाइना का एग्जाम्पल. अब देखो कैसे इकोनॉमी, इकोलॉजी और हेल्थ जुड़ी हुई है, जैसे वन हेल्थ का. अब ये जो एग्जाम्पल जो भी बताने वाला हूं आपको, ये केस स्टडी आप ऐसे में यूज करो. कोई भी आए ऐसे में इस पे इसको डाल के इसको एक्सप्लोर करो. हुआ क्या था, एक प्रोग्राम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड. अच्छा ये बात जो लिख रहा हूं मैं कलर में दिख रहा है इजीली? सर थोड़ा सर दूसरा कलर ले लीजिए सर. बताओ क्या लूं, रेड ले लूं? रेड ले ले सर, कॉन्ट्रास्टिंग रहेगा. ये ठीक है. हाँ सही है सर. सो एक प्रोग्राम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, स्टार्ट किया था माओ जेडोंग ने 1959-61 कह रहा हूं. आइडिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कोई भी लीडर एग्जाम वो देता है आपको कि ग्रेट अपनाएंगे, ग्रेट अपनाएंगे. जब भी कोई कहना ग्रेट अपनाएंगे तभी समझ लो कुछ खतरा होने वाला है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 पेस्ट आइडेंटिफाई किए: मॉस्किटो, रैट, रीथा, फ्लाई एंड स्पैरो. तो 4 पेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ 4 पेस्ट. अभी जो ये मॉस्किटो, रैट और फ्लाई था, इनको एलिमिनेट करने का आइडिया ये था कि दे स्प्रेड डिजीज, टाइफॉइड, मलेरिया, प्लेग. पर साथ में लपेटे में ले लिया एक स्पैरो. स्पैरो को लपेटे में ले लिया. अब इनका आइडिया ये था कि जो स्पैरो है ना, ये स्पैरो क्या करती है, राइस फील्ड को खाती है. राइस फील्ड, दे आर डिस्ट्रॉइंग राइस फील्ड. सो एलिमिनेट स्पैरो टू प्रिवेंट फूड लॉस. सो माओ ने एक्चुअली आइडिया लगाया कि एक स्पैरो को अगर आप मारोगे तो लगभग साल में 4 pound of rice can be saved annually. 4 pound. अब उन्होंने ढोल ड्रम पीटने शुरू कर दिए. ढोल ड्रम सब कुछ प्रोवाइड किया. अब ढोल ड्रम पीटे, ये डर के उड़ गई. अब उड़ने के बाद बैठने की कोई जगह ही नहीं मिली कि पूरे गांव में ढोल और ड्रम पीट रहे हैं. somehow exhaust हो गए उड़ते उड़ते और they fell down. Millions of sparrows were killed. Millions of sparrows. बहुत खुशी हुई. मारे ये भी थे, पर स्पैरो का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त आया. अब कोई भी जब ऐसा ग्रेट लीडर होता है ना, they all do one thing, they ignore scientific advices. साइंटिफिक एडवाइस को दे इग्नोर कन्वीनियंट. अब हुआ क्या कि स्पैरो तो मर गई. ह्यूज लेवल का
लोकस्ट अटैक हुआ, लोकस्ट टिड्डे huge level का swarm of locust, and they destroyed field after field completely. It is estimated around 15 to 45 million. लगभग 1.5 से 4.5 करोड़ लोग भुखमरी से मरे थे इस प्रोग्राम में। स्टडी हुई कि ऐसा हुआ, तो बाद में समझ में आया कि जो राइस फील्ड को खाते थे ना डॉग, दे डिस्ट्रॉय ए पोर्शन ऑफ राइस फील्ड, बट उस फील्ड को खाते खाते वो टिड्डे भी खा जाएगा। अब जिसको बटर चिकन मिल रहा है वो क्यों खाएगा ब्रोकली? तो जब स्पैरो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टिड्डे मिल रहे थे तो एक्चुअली में लॉस कम हो रहा था। सो एक इकोलॉजिकल बैलेंस लोकस्ट की पॉपुलेशन में और स्पैरो में। सो स्पैरो ने क्या कर रखा था, उसकी पॉपुलेशन को ना कंट्रोल में किया हुआ, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर था, पर द मोमेंट आपका वो प्रेडेटर हट गया, इनॉर्मस पॉपुलेशन, इनॉर्मस, पूरे पूरे फील्ड बर्बाद कर दी। इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप देखना कभी यूट्यूब पे। अब इसको करेक्ट करने के लिए बाद में मिलियंस ऑफ 25-250 पता नहीं कितने मिलियंस, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, जो मिलियंस ऑफ स्पैरोज वर इंपोर्टेड फ्रॉम द रशिया, मिलियंस, टू करेक्ट द इकोलॉजिकल imbalance. That's why I told you that the linkage is so strong. If you expect that you will remove one comma, one element of that, और बाद में सिस्टम स्टेबल रहेगा, then you are fooling yourself. Fooling yourself. That's why the idea of One Health इम्पैक्ट है उसके ऊपर। जैसा बोला फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। यूज दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स वेयरएवर पॉसिबल। फोर पेस्ट कैंपेन फॉर चाइना, यूज सच काइंड ऑफ थिंग एंड टू अंडरलाइन टू डू। पूरे पूरे फील्ड डिस्ट्रॉय कर दी, लोकस्ट, स्वार्म ऑफ लोकस्ट। फिर बाद में रिपोर्ट करवानी पड़ी रशिया से, बाद में समझ में आया कि गलती हुई, और फिर ग्रेट लीडर्स की ये खासियत है कि वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये तो बाद में रिपोर्ट्स आती है, उस टाइम पे थोड़ी एक्सेप्ट किया, हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक्सेप्ट करी तो फिर वो जो गॉडली फिगर होती है वो कैसे मानेंगे लोग? भगवान से गलती थोड़ी हो सकती है। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट होता है, टेक्निकल टर्म्स में आप वो भी यूज कर सकते हो, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल अल्रिक, बाय पॉल अल्रिक। अब इसका आइडिया क्या है कि कई बार ये बातें उठी, जो क्रिटिक्स होते थे कि यार अगर एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होगी, दो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी, क्या बवाल होगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज है, क्या हो जाएगा करने के लिए? तो उसका जवाब दिया गया इस हाइपोथेसिस के द्वारा कि सपोज कि एक इकोसिस्टम को आप एरोप्लेन मान लो, एनी एरोप्लेन इज एन अर्थ इकोसिस्टम, और उसका जितने पार्ट है, जैसे विंग्स हो गया, विंग्स के नट हो गए, सीट होगी, सीट के नट बोल्ट हो गए, सरफेस हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, उसको एक स्पीशीज मान लो। हर एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो एक स्पीशीज है। अब वो हवाई जहाज उड़ रहा है, दैट एरोप्लेन इज फ्लाइंग, सडनली अंदर से क्या करो, एक नट खोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरा नट खोल दो, कुर्सी का, फर्क नहीं पड़ेगा।
आपने 4 नट खोल दिए कुर्सी की, अब वो कुर्सी उखड़ गई, और ऐसे करते करते आप सारी कुर्सियां उखाड़ दो। अब वो जब प्लेन उड़ रहा है तो कुर्सी इधर उधर हो रही है, क्या उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अब आप काम करो, जो कॉकपिट है उसमें से रडार निकाल के फेंक दो, इमीडिएट इफेक्ट। अब इंजन का नट निकाल दो, इमीडिएट इफेक्ट। अब टॉयलेट की फ्लश की सीट उखाड़े फेंक दो, नॉट इमीडिएट इफेक्ट बट इन लॉन्ग टर्म। सो द आइडिया इज दैट कि जो एक ही चीज प्लग आउट करेगा, कंसीडर दैट एज ए स्पीशीज। सो देयर आर सर्टेन स्पीशीज व्हिच आर लेस इंपॉर्टेंट, लाइक नट ऑफ सीट बेल्ट, सीट डोरी। अगर वो नट मर गया, वो एक अनइम्पोर्टेंट स्पीशीज मर गई, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर इमीडिएट, उस इमीडिएट फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसे ऐसे करते करते सारी हो जाएंगी, तब जाके सिस्टम में कोई इफेक्ट दिखेगा आपको। ये तो उनके लिए जो लेस इंपॉर्टेंट है, बट देन देयर आर सर्टेन स्पीशीज व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट, लाइक रडार, लाइक दैट नट ऑफ इंजन, नट ऑफ विंग्स, जैसे हनी बी। इम्पैक्ट ऑफ हनी बी इज ह्यूज पॉलिनेशन में। तो दैट मीन्स एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग है, और उसका इम्पैक्ट भी स्केल में अलग है। कुछ स्पीशीज का इम्पैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज, कि अगर वो रिमूव कर दी गई तो आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा। पर कुछ स्पीशीज जो लेस इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई ब्रायोफाइट हो गया, कोई छोटी सी फंगस होगी, कोई इंसेक्ट हो गया छोटा सा, वो रिमूव होगा तो उसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज नहीं होगा, इमीडिएट इफेक्ट फ्यूचर में, बट लॉन्ग टर्म में उसका भी होगा। So whole idea is here, इसको summarize करें, और you have to write in the answer that everything is connected to everything else. You just cannot pull out one segment, one call, and expect that nothing will happen. It will imbalance the whole ecosystem. उसमें तो for example, idea of Ribet-Popper hypothesis that consider ecosystem of Earth as an aeroplane and every segment of plane as a species. Once you start removing one by one, it has impact on the whole ecosystem. Simple. आइडिया आपको बता दिया, अब लिखना आपको आना चाहिए कि कैसे इस आइडिया को 4 लाइनों में समराइज कर दूं। सर मधुमक्खियों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सर कहा था कि अगर वो खत्म हो जाएंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, जिससे मतलब भुखमरी आ सकती है। इसको इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं ना, रिवेट बिल्कुल डाल सकते हो रिवेट आप पॉपर उसी। सर। हाँ जी बोलिए। सर ये बोलिए कौन बोलिए। थे सर, रिवेट पॉपर? रिवेट पॉपर सर ये थिंकर थे कोई, नहीं नहीं, हाइपोथेसिस है, थिंकर इन्वायरमेंटलिस्ट? तो पॉल अलरिक था। अच्छा। ये हाइपोथेसिस का नाम है, रिबेट पॉपर। सो मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो शायद याद नहीं है, 60 से 70% जो पॉलिनेशन हो रही है ना, बीज आर इन्वॉल्व इन इट। यू प्लीज चेक दिस डाटा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। बट समहाउ आइडिया क्या है कि इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है बीज का इकोसिस्टम में, बहुत ह्यूज है। दैट्स द होल आइडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, वन हेल्थ, द ट्रायड, environment, human, animal. You cannot separate these things. इम्पैक्ट आएगा ही आएगा सबके ऊपर। अभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेटनेरियंस इन पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ वेटनेरियन इन पब्लिक हेल्थ। 10 मार्कर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या रोल है इसका? फर्स्ट रोल इज, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी वेटनेरियन का है,
डायग्नोसिस सर्विलेंस। डायग्नोसिस सर्विलेंस आपके एरिया में कुछ वक्त पहले पंचकुला, चंडीगढ़, ये पंजाब वाले एरिया में HPAI है, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। सो उस एरिया के जो वेटरनेरियंस थे उनसे पूछा गया कि भाई आपकी सर्विलेंस क्या है, व्हाट इज योर सर्विलेंस, हाउ यू डायग्नोज द थिंग्स। पहला रोल जो है ग्राउंड लेवल वेटरनेरियन का है, गेट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप बनोगे आगे जाके, अगर कोई आप में से हो भी तो, अगर जॉब कर रहा हो। उसे पूछा गया कि आप डायग्नोज कैसे करोगे, सर्विलेंस। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी, हाउ दैट डिजीज स्प्रेड, व्हाट इज द नेचुरल इकोनॉमी, सॉरी नेचुरल इकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वेक्टर पॉपुलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कंट्रोल, क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या हमें कलिंग करनी पड़ेगी, या वैक्सीनेशन प्रोग्राम से काम चल जाएगा, प्रिवेंशन देन एलिमिनेशन। सो इट्स ए कंप्लीट चेन। ऑल दीज थिंग्स आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेटरनरी। प्राइमरी, सबसे पहला पब्लिक हेल्थ में ऑब्जेक्टिव यही है। एक्चुअली में देखा जाए तो इनके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी समराइज, और लिंक करने वाला अगर हो तो इनके अंदर सब कुछ लिंक कर देगा। एलिमिनेशन ऑफ जूनोसिस। अब HPAI आती है तो उसको जोनिंग कर देते हैं, 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, कि जो इनिशियल 1 किलोमीटर का जोन है, फिर 5 है, फिर शायद 10 है। अब 1 किलोमीटर में जितने भी हैं पोल्ट्री हाउसिंग, सब में जाओ कलिंग करो। कैसे? मिलियंस, मिलियंस ऑफ बर्ड्स। स्वाइन फीवर, हालांकि ये बहुत कम आती है, क्लासिकल स्वाइन फीवर। अब वो कलिंग करनी पूरे फार्म की। सो हाउ विल यू डिवाइड द मैकेनिज्म? कहीं पे ब्रुसेला है, एबॉर्शन स्टॉर्म आ गए, ब्रुसेला जूनोटिक, हाउ विल यू डिवाइड थिंग्स? So these are the primary objective. Primary, सबसे पहला तो यही है। Somehow being a veterinarian, your first focus is always on animal. After that, environment. First तो हमेशा animal ही रहेगा, because we are the first link है उसके, जो ना इस चेन में वेटरनरियन होने के नाते उनकी डिजीज का, उनको ट्रीट करने का, प्रिवेंशन का, वो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है वो वेटरनरी सर्जन होता है। उसके अलावा एडिशनल एक्टिविटीज क्या है? मैनेजिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन। आपको पता होना चाहिए कहीं पे कोई वाइल्ड पॉपुलेशन का जोन कौन सा है आपके एरिया में। फिर कई बार आप देखो कोई एरिया ऐसा होता है जो समहाउ किसी नेशनल पार्क के ना बफर जोन में है, जिसे क्या कहते हैं वो, दैट इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन जो इनके अराउंड बना रखा होता है, इको सेंसिटिव जोन। अब वहां पे कौन सी पॉकेट है जहां पे कोई लेपर्ड या कोई नील गाय या फिर कोई और वाइल्ड एनिमल पाया जाता है, वहां पे फ्रीक्वेंटली उनकी मूवमेंट है। क्या वहां पे कोई वाटर पॉन्ड है? क्या कोई और इंपॉर्टेंट ऐसी कोई चीज हो जहां पे सारे आते हो? somehow you have to manage all these things. You must have knowledge about all this. या तो क्या पता उनका प्रे विलेज में आता हो, या फिर डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर दे आर प्रेइंग। मतलब समहाउ ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दीज आर एडिशनल एक्टिविटीज, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल। अभी कहना कितना आसान होता है, एक बंदा वो ट्रीटमेंट भी कर रहा है, वो तरह तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट कर रहा है, वो इंश्योरेंस भी कर रहा है, वो लोन डिसबर्समेंट भी कर रहा है, वो आखिरी में रिपोर्ट भी बना रहा है। और देन यू एक्सपेक्ट कि इतने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करेगा, तो समाओ ये क्या होता है, कागज की बातें हो जाती है। अगर आप में से कोई हो, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में सर, उत्तर प्रदेश में तो अतिरिक्त गौशाला भी है। डॉक्टर के पास 5-5 गौशाला, 6-6 गौशाला एक्स्ट्रा है इनके अलावा सर। अच्छा, वो भी चार्ज उन्हीं को दिया हुआ है डॉक्टर को? बी को दिया है सर, जिसके ब्लॉक में पड़ता है वही उसका प्रभारी है।
और एक एक गौशाला में 100, 150, 200 ऐसे पशु हैं, सब सांड है, कोई बूढ़ी गाय है। रोज जाके ट्रीटमेंट करिए, और केसेस बहुत वहां पे रोज वहीं जाना रहता है, मान लीजिए अपने काम वैक्सीनेशन छोड़ कैसे के। होती है एफएमडी की? सर वो तो टीम बना के हो जाती है। स्टाफ की शॉर्टेज नहीं है आपके? बहुत शॉर्टेज है सर, फेक रिपोर्टिंग होती है, ओपन एंड ऑनेस्टली कहूँ तो। फिर स्टाफ कहाँ से लेके आओगे, यही तो बात है ना, टीम कैसे बनाओगे? स्टाफ सर हैं, लेकिन वो आउटसोर्सिंग पे है, 3 रुपए मिलता है एक टीका लगाने का, कोई इंटरेस्ट लेता नहीं सर। 3 रुपए तो बहुत कम है, उसे चोट मार देगी 3,000 का नुकसान हो जाएगा उसको। तो सर सरकार ने 2 रुपए और बढ़ा दिया, 5 रुपए कर दिए, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आएगा। बहुत कांस्टेंट है सर, हम लोग टीका नहीं लगवा पाते। एनएडीसीपी का हम लोग नहीं करवा पा रहे काम, एलएचटीसी के नहीं करा पा रहे हैं, और भी स्कैड के प्रोग्राम से वो नहीं करा पाते हैं सर। कितनी प्रॉब्लम है, तो बहुत मैं है सर आपको प्रॉब्लम, कहूंगी इतनी ये भी ज्यादा। काम करो। ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है। घर जाना है, घर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है इंसान की। जबकि सर हम लोग का ओपीडी टाइम 8 बजे से 2 बजे तक का है सर, लेकिन हाँ उसके जी। बाद भी हम लोग लगे रहते हैं शाम तक, लेकिन फिर भी नहीं पूरा हम्म। हो पाता है काम। एरिया बहुत बड़ा है ना आपका, हाँ सर। गौशाला तो सिर्फ एरिया, सिरदर्दी है। डॉक्टरों की कमी भी है सर, स्टाफ की भी कमी है, और बट काम की कमी नहीं वही, है, काम की कमी नहीं है सर। वो हमेशा फालतू रहे। यस सर। वो कभी नहीं रहे। सो अब देखो यही बात होती है कि आपने डिवाइस करते टाइम इतनी चीजें डिवाइस कर दी, लेकिन उस जब आपने मैकेनिज्म बनाया उसके अप्रोप्रिएट आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, सो यू बिल्ड फॉर फेलियर। दैट्स व्हाई पॉलिसी फेल क्यों होती है इंडिया में, अल्टीमेट रीजन यही है सब कुछ। ओवरबर्डनिंग, स्टाफ आप करते नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स आपने भर्ती करनी नहीं। एक प्राइवेट वाला आउटसोर्सिंग पे क्या होगा, बंदा कितना इंटरेस्ट लेगा, उसको क्या इंटरेस्ट है? अब 5 रुपया 50 रुपए दे दो, 50 रुपए के लालच में चलो आ तो जाएगा, पर वो काम थोड़ी करेंगे। मॉनिटरिंग तो आपको करनी है ना जाके। अब आपके पास 10 स्टाफ आ गए, वो कहते हैं हमने इतने लगा दिए, इतने लगा दिए, इतने लगा दिए, लगाए नहीं लगाए तो आपको देखना होगा ना। कल को अभी बीमारी आएगी तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उनका क्या है? यस सर, हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस जो जिम्मेदार होता है हम लोग उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके सर लिए पावर वो नहीं है ना। कोई परमानेंट सर वो नहीं है ना एम्प्लॉय, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होती, ये समस्या है। परमानेंट एम्प्लॉय डरता है क्योंकि अपनी यस नौकरी सर। की केयर करता है कि बड़ी मुश्किल से मिली है, कर लो काम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद पब्लिक हेल्थ, वो हेल्थ ट्रायड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, बना के आप हेल्थ ट्रायड यहाँ पे शो कर सकते हो, द ट्रायड इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव, जो बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली। अब है कुछ इंटरनेशनल रोल इन जूनोसिस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रोल। बिकॉज अल्टीमेटली जब WHO कोई बीमारी को डिक्लेयर करता है, दैट्स इट्स ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये टर्म होती है यूज करते वो, PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। So WHO's global effort to strengthen the surveillance of and response to all communicable disease. अल्टीमेटली डाटा सारा उनके पास है ना, वो मॉनिटर करेंगे और देखेंगे। WHO के कुछ रीजनल ऑफिस भी होते हैं, अब वो तो ऊपर बैठे हैं ना, अब नीचे रीजनल ऑफिस होंगे जहां से डाटा आएगा उनके पास। थ्रू दोज डाटा दे एनालाइज द पैटर्न, द ट्रेंड और स्प्रेड ऑफ डिजीज, और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे क्या प्रिवेंटेबल मेजर्स ले सकते। कोलैबोरेशन विद FAO एंड OIE। सो WHO, FAO and OIE, these three agencies are main agencies in zoonosis control or One Health Initiative, जो सारा को देखने होगी। सर पिछले साल सर क्वाड्रिपार्टाइट संधि हुई है सर, उसमें यूनेप को भी जोड़ा गया है सर। किसको?
यूनेप सर, यूनेप, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यस सर, तो ये क्वाड्रीपार्टाइट हो गया सर ट्राइपार्ट से। इनके साथ जोड़ा गया है। यस सर, 4 संस्थाएं वन हेल्थ अप्रोच पे काम कर रही हैं सर। और इस अच्छा। बार 25 अक्टूबर सर, लास्ट वीक में दिल्ली में सर पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट का भी रिलीज हुआ है सर, इन्हीं चारों के उसमें। तो नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एफएओ है, ये इट इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, इस टाइप से या सच में इन्वॉल्वमेंट है सर, यूनेप का इन्वॉल्वमेंट है सर। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यूनेप और इन्वॉल्वमेंट, थैंक यू, ये आपने अपडेट कर दिया नॉलेज यस को। सर, उसमें ये सब हो क्वाड्रीपार्टाइट मीटिंग। यस सर। अच्छा, क्वाड्रीपार्टाइट बन गया ये। यस सर। ठीक है, वैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनका भी इन्वॉल्वमेंट तो है ही। तो सर ये लोग एनिमल, ह्यूमंस, इन्वायरमेंट और प्लांट्स, ये चारों का मतलब करते हैं सर। तो प्लांट्स वन को भी हेल्थ ले में लिया प्लांट है। भी जोड़ दिया। यस सर। प्लांट से कौन सी डिजीज ऐसे फैल रही है ग्लोबली? सर डिफॉरेस्टेशन, वही इन्वायरमेंट के सब्सिडरी में डिफॉरेस्टर, प्लांट हटेंगे तो जानवर तो सब आएंगे प्लांट सोसाइटी का जो में। सेगमेंट तो ऐसे इन्वायरमेंट में आ गया ना वो। लेकिन सर उन्होंने लिखा है सर, क्वाड्रीपार्टाइट मीटिंग हुई है सर लास्ट। ठीक है, ये यूनेप का इन्वॉल्वमेंट नो डाउट मेक सेंस। ये इलॉजिकल, ये लॉजिकल है वैसे, पर जब हम ये न्यूज में मिस कर गया एक्सेप्ट, ठीक है, कोई बार इसके यस सर। बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको, अगर आप भी उसमें और थोड़ा और निकाल लेना, तो कल यस लेक्चर जो होगा उसमें आप थोड़ा और इस पे इंसाइट डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि आप बात करते रहेंगे एक दूसरे से, तो उससे होता है कि नॉलेज निकल के आती है, और भी है जी ना, सर। जी सर। सबका बेनिफिट होता है। मेरे को भी देखो, एक आदमी कितनी नॉलेज ले सकता है ना, तो देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग। ठीक, तो आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में खासियत तो यही होती है कि कई बार स्टूडेंट भी ऐसा पॉइंट पूछ लेते हैं, ऐसा पॉइंट लिख देते हैं जो कई बार चेकर को, एग्जामिनर को नहीं पता होता। और ये बात यूपीएससी बताते हैं, जब वो मॉडल आंसर देते हैं ना एग्जामिनर को, कहते हैं कई चीजें ऐसी भी लिख देंगे वो, जो इसमें नहीं है उन्होंने लिख दी हुई, फिर उनको वेरीफाई करना, फिर मार्क्स देना। यस सर। क्योंकि इतना बड़ा, ये तो एंडलेस क्वेश्चन है, कुछ सिलेबस थोड़ी है एंडलेस क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी। एनीवे वेरी गुड, आपने किया इसके बारे में। डॉक्टर साहब आप ही देखिए कल और नॉलेज देना, ठीक है, आपका होगा सर मैं भेजता हूँ सर आपको पर्सनल। आप भेज दीजिए प्लीज। यस। इसका लिंक हो ना तो भेज दो, मैं भी इसको देख लेता हूँ। जी सर। ठीक है, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बता ही दिया, ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है एक्चुअली में, इस एग्जाम के लिए तो नहीं है जरूरी, बट सम ऐसे डालने की कि OI 25 जनवरी 1924 में, FAO 1945 में, और WHO 1948। अभी अभी यूनियप और जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ पब्लिक हेल्थ इंडिया में, NCDC 1964, BPH एजुकेशन मास्टर डिग्री इन BPH इनिशिएटेड एट पंतनगर इन 1965, एम्स में 1970 में, IVRI 1971 में। कई बार ना ये चीजें आखिरी में ये होता है कि भाई इंडिया ने क्या किया, सो सारा आर्ग्यूमेंट आपने लिख दिया आखिर में, देखो दैट कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस डैश डैश डाल के जो भी हो, गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग इनिशिएटिव्स, लिख दो एक दो। सो कंक्लूड करने में थोड़ा ठीक रहता है कि एग्जामिनर को लगे कि इसको ये पता है कि सरकार भी कुछ कर रही है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, AI हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई भी संसार में कोई भी बवाल मच रहा है ना, तो ये तो कन्फर्म है कि सरकार कोई ना कोई स्टेप तो लेगी उसके अगेंस्ट, ये तो होना ही है। सो वो मेंशन करना जरूरी हो जाता है। टीचिंग पे स्वभाव इतनी आसान नहीं है, 4 घंटे बोलो, रोज बोलो, गला सूख जाता है। सो ये है कुछ
ये एक क्वेश्चन था, ये छोड़िए आप। अब थोड़ा सा जो चीजें थे वो इलेबोरेट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट, बाकी मैक्सिमम तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो बताया था वो समराइज करके एक लाइन में लिख दिया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसमें कि पहला कैसे प्रिवेंशन में कंट्रोल करोगे। फर्स्ट, मॉनिटर एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है अपने एरिया की, जैसे कि बता चुके हैं आप। यू हैव टू कीप एन आई ऑन व्हाटएवर हैपनिंग इनटू योर एरिया। डिजीज डायग्नोसिस एंड रिपोर्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग, फारसी एक्ट आया था, है क्या प्रॉब्लम, क्या था मोमेंट एक वेटनेरियन को अपने एरिया में कुछ पता भी चल गया है, अब वो वेटनेरियन जाके अपने सीनियर को बताएगा, अब सीनियर 4 टाइप के एडवाइस देंगे कि मत बता समस्या तेरी हो जाएगी, दबा दे इसको। होते नहीं होता ऐसे, मत ले पंगे, डोंट टेल एनीवन। रिपोर्ट करेगा तो तुम्हारे ऊपर ही गाज गिरेगी। बट somehow ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट रिपोर्ट सच इंपॉर्टेंट थिंग टू इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको वहां पे भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फॉर पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। नो डाउट कुछ रेपरकशंस भुगतने पड़ सकते हैं, बट अगर सोच के देखो वो चीज कंट्रोल में नहीं आई और बाद में जाके अगर चीजें ब्लो होगी, बाद में एकदम से ब्लो हुई थी, थिंग गो आउट ऑफ कंट्रोल, फिर वो मीडिया अटेंशन, लोग, और फिर वो जब एक बार वो हो जाए ना, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल है। द मोमेंट आपने रिपोर्टिंग करवा दी एक बार के लिए, यू आर सेफ, यार देखो ये जो था मैंने तो रिपोर्टिंग कर दी थी, अब हायर ऑफिशियल को मेरे जितने बस में था आई हैव डन दैट, उससे कंट्रोल नहीं होता तो मैंने रिपोर्टिंग कर दी। नहीं करोगे तो बिल्कुल मार जाओ। सो important, extremely important reporting of the disease. और when reporting तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कि क्या इफेक्टिव हो सकता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जैसे रिंग वैक्सीन होती है, रिंग वैक्सीनेशन आप बाहर से स्टार्ट करते हो, ऐसे पूरा एक सर्कल लेते हो कि इतने इतने एरिया में फैली होगी तो इतने इतने एरिया में हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं। सर 1 किलोमीटर का रेडियस लेते हैं सर, क्या? जहां से डिजीज का सर वो आउटब्रेक होता है, वहां से सर 1 किलोमीटर के रेडियस में हमको रिंग वैक्सीनेशन करना होता है। हाँ वो एक्चुअली सब में अलग अलग होगा ना, यस रेडियस सर। कैसे कैसे, पर समहाउ मेन बात ये है ना कि आपको डिवाइस करनी है स्ट्रेटेजी। अब आप ये ऐसे लिखोगे कि आपने कोई एग्जांपल दिया, सपोज फॉर इन केस ऑफ HPAI, सो में 1 किलोमीटर का पहले लेंगे रेडियस, या स्वाइन फीवर तो कितना लेंगे, या ब्रूसेला तो कितना लेंगे, वो आपको फिर अल्टीमेटली एक एग्जांपल तैयार करना पड़ेगा, उसका यस फिर सर, एग्जांपल। एसओपी अलग अलग है सबके सर। क्या? एसओपी सबकी अलग अलग है सर। हाँ, SOP सबके अलग अलग है। तो यहाँ पे आप जिसका भी मेंशन करो उसे एग्जांपल दे दो कि उसमें 1 किलोमीटर है सर्विलेंस। शांत जी का फोन आ रहा है, जो मैनेजमेंट देते पता नहीं क्या क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही प्रॉपरली, क्या हुई पता नहीं वो क्लास के बीच में फोन तो नहीं करते। यहाँ पे एक वो इमेज बनाई थी मैंने, वो पता नहीं कहाँ से ली गई, कैसे चली गई। एक इमेज बनाई थी मैंने, इसमें क्या है कि फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। अब फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ में आपने क्या देखना है, एक तो HACCP आपको करना है विजिट, सर्विलेंस ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज, कहां पे मीट, कहां पे मिल्क और कहां पे एग, प्रोडक्शन हाउसेज यू हैव टू विजिट
and conduct your surveillance in production houses, annual production houses. And when you are going to production houses, not just the product, but also the overall hygiene. ओवरऑल हाइजीन कैसे वहां पे अच्छी है. अब जब एंटर किए आप गेस्ट हाउस में गए, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्लाइज. इमीडिएटली आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक समथिंग कॉल्ड जीएमपी. अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं मिल्क का, सपोज करो मिल्क का प्रोडक्ट कर्ड बन रही है, योगर्ट बन रही है, या फिर कोई घी बन रहा है, एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस are not followed, it's your responsibility to take a tap on. So सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ओवरऑल एनवायरनमेंट की हाइजीन कैसी है उस पर भी आपको ध्यान रखना है. आफ्टर दैट HACCP, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. इसके बारे में वैसे अलग से टॉपिक है कि 7 स्टेजेस होती है इसकी. पहले हैजार्ड एनालिसिस करो, फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बनाओ, उनकी लिमिट सेट करो, फिर सी मॉनिटरिंग, अगर कोई डेविएंट है तो उसको करेक्ट करो, देन रिपोर्टिंग, whether HACCP is followed or not, GMPs are followed or not, production houses में. That's why food safety and public health. अब फूड सेफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो तीसरा डायमेंशन है, वो है फार्म टू प्लेट हाइजीन, फार्म टू प्लेट सेफ्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. फार्म टू प्लेट ये अल्टीमेटली प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक, प्रोडक्शन टू कंजप्शन, पूरी चेन में इतनी लंबी चेन है, बहुत लंबी. प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, हर एक जगह पे सेफ्टी पैरामीटर्स ब्रीच नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट विल इफेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो योर एक्सपोर्ट्स. इतनी लंबी चेन है फ्रॉम फार्म टू प्लेट, कह तो दिया, बट इसके बारे में भी इतनी लंबी चेन है कि इसको ऑलमोस्ट 650 हो गए. तो एक 7 बजे मेरी क्लास है, तो इस यहां से ना फार्म टू प्लेट से हम कल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, ये आज के डिस्कशन में एनी क्वेश्चन? नो सर. ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर और Yes, काफी sir, ज्ञान yes, मिला, sir. है ना. कल से फिर फार्म टू प्लेट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको. ठीक है, ओके सर. ओके ओके, गुड नाइट. ओके. थैंक यू सर.